Assalamu alaikum everyone and welcome back to my YouTube channel English Mad with Salim. So once again I'm back with a new video और इस आज की वीडियो के अंदर we are just going to cover lesson number 10 from our series of 30 confusing subjects. That's all about subject verb agreement. Video is going to be very important for all the aspirants who are looking for one paper exam, चाहे वो एनटीएस हो या सीबा टेस्टिंग सर्विस हो या पीटीएस या फिर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो. So this is going to be very important video for all of you. So let's move to the screen और शुरू करते हैं अपना lesson number 10 from confusing subjects. So dear viewers, we are on a screen. So before starting our lesson number 10, सबसे पहले I want you just look at this sentence. Neither Ali nor Ahmad is or are present. Take 3 seconds and decide in comments which option is correct. Is या फिर are. So the 10% of students जो कि appear होते हैं वो चाहे सीबा टेस्टिंग सर्विस हो, आईबीएस सखर जिसे हम कहते हैं, या एनटीएस हो, पीटीएस हो या फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो. So 10% students know the answer of this rule. Neither Ali nor Ahmad is या फिर are present. So let's try to just understand this rule. सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. This is a video number 10 जिसमें 9 videos हमने confusing subjects की cover कर चुके हैं. अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, just go and watch and learn all these very important rules. So neither nor with subject. Let's try to understand first. When neither nor connects two subjects, the verb agrees with the nearest subject. So हमने पहले ही रूल नंबर 9 में ये सीखा था. आई थिंक रूल नंबर 8 के अंदर हमने ये सीखा था कि जो nearest verb to the subject होगा तो हम सब्जेक्ट वर्ब जो एग्री करेगा वो उसी सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा जो कि उसके नियर होगा. अगर पॉइंट 1 को देखें, दिस इज आल्सो नोन एज प्रॉक्सिमिटी रूल, यानी कि जो नेरेस्ट जो सबसे वर्ब होगा हम क्या करेंगे, नेरेस्ट सब्जेक्ट जो वर्ब के साथ होगा उसके साथ हम वर्ब को एग्री करेंगे. Look at the second point. Ignore the first subject in the sentence. For example, just look at this sentence. Neither Ali nor Sajad Singh. तो यहाँ पर सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है, अली है. तो सेकंड पॉइंट कहता है कि आपने क्या करना है, यू हैव टू जस्ट इग्नोर द फर्स्ट सब्जेक्ट. फर्स्ट सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दैट इज नॉट आवर बिजनेस. हमें क्या करना है, जस्ट वी हैव टू जस्ट लुक एट द सेकंड सब्जेक्ट. नीदर नॉर मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, ना ये ना वो. फॉर एग्जाम्पल, नीदर अली नॉर सजाद सिंह, ना ही अली गाता है ना ही सजाद गाता है. सो स्ट्रक्चर अगर हम देखें, सबसे पहले क्या होता है, नीदर नीदर होता है, देन सब्जेक्ट वन, देन नॉर, सब्जेक्ट टू, देन वर्ब. So let's see more sentences. So once again, this is a video number 10 and we are learning neither nor as a subject, and sentence number 1 says neither she nor they dash poors. Okay, just take 3 seconds and decide in comments या फिर अपनी notebook में note करें which option is correct. Option A is supporting, they am supporting, and C are supporting, D has supporting. सो जस्ट फील दैट कि आप अभी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं. आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर नीदर नोर का कोई भी सेंटेंस पेपर के अंदर आता है तो आपने क्या करना है, सेकंड सब्जेक्ट को चेक करना है, दैट इज इट अ प्लूरल और सिंगुलर, क्योंकि वी आर जस्ट गोइंग टू पुट वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. सो द सेकंड सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस इज दे, जो कि प्लूरल प्रोनाउन है. A option is wrong because the verb is singular. B option is incorrect option, and C is going to be the correct. So the sentence is neither she nor they are supporting poors. Let's move to the second sentence. Neither
she nor I were interested in the proposal. अब हमें यहाँ पर क्या करना है? दिस इज एरर डिडक्शन. यू हैव टू फाइंड द एरर. एरर ए जो है, दैट इज नॉट एरर. नाइदर शी इज करेक्ट. सो द बी इज आई वर interested in, and C is a preposition. D हमारे पास है with no error. Let's see. अब देखें हमें क्या करना है. We have to check subject verb agreement here. अब यहाँ पर देखें we have I. B जो error डिडक्शन कहा गया है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो verb है that is a plural, और यहाँ पर I is a singular. यहाँ पर क्या होना चाहिए? There should be they were interested in the proposal. By the way, here error is B in the sentence. Let's move to the third sentence. Third sentence says neither principal nor his assistants dash attending the conference. Take 3 seconds and decide your answer in comment. Option A are, option B was, option C has, and option D is. So again, we have to check the second subject, and second subject is plural. और अगर आप B से लेकर D तक ऑप्शन देखें, ये सारे के सारे क्या हैं? Singular हैं. Option A is correct in this sentence because this is a plural and the subject is plural. Neither the principal nor his assistant are attending the conference. So the number 3 sentence we have done. Let's move for the sentence 4. So हम यहाँ पर neither nor को subject के साथ सीख रहे हैं, and this is a video number 10. If you are new on this channel, just go and check playlist of confusing subjects. Let's see the sentence number 4. Neither the student nor the teacher was in their class. Once again, we have spot the error. क्या करना है? Just find the error. So the A अगर देखें, this is a not error. Nor the teacher was. Subject verb agreement is correct. This is, look at ऑप्शन सी. यस, इस तरीके के भी जो एरर्स हैं बहुत ज्यादा आती हैं. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम देखें, वर्ब किसके साथ एग्री कर रहा है? वर्ब एग्री कर रहा है सेकंड सब्जेक्ट के साथ, द टीचर के साथ. द टीचर वाज. अगर टीचर एक है तो यहाँ पर दिस इज वी हैव द पॉजिटिव एडजेक्टिव है हमारे पास. अब पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर हम टीचर को देखें तो टीचर इज अ सिंगुलर, तो सी इज अ एरर इन द सेंटेंस. इस टाइप की एरर्स बहुत ज्यादा आती हैं. अगर आप टीचर को देखें, फॉर एग्जांपल अगर टीचर की जगह यहाँ पर आई होता, वी होता, यू होता, या हमारे पास जो प्रोनाउंस हैं सारे के सारे उनमें से कोई भी एक यहाँ पर होता, तो यहाँ पर द करेक्ट इज हिज क्योंकि टीचर है और टीचर इज सिंगुलर, एंड देयर वी पुट फॉर दे. ओके, अगर यहाँ पर टीचर्स होता तो हम फिर भी देयर्स करते. ये आप नोट कर लें अपनी बुक के अंदर कि इस तरीके की एरर्स भी बहुत ज्यादा आती हैं पेपर के अंदर. अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो नेदर शी नॉर आई वाज इन माय क्लास होगा या फिर हिज क्लास होगा, एग्जैक्टली माय क्लास होगा. सो लेट्स मूव टू द sentence number 5, the next sentence. So this is video number 10, and this is a series of 30 confusing subjects that is all about subject verb agreement. Just take your 3 seconds and tell me in comment which sentence is correct, because it says choose the correct sentence. Look at option number A. It says neither the teacher or the student are ready. That is incorrect. क्यों? ये error बहुत ही common आता है पेपर के अंदर, and neither के साथ आप कभी nor का in this sense इस्तेमाल नहीं करते. Option number B है neither the teacher nor the student has. पहले sentence से I am repeating that कि हमें क्या करना है कि हमें second subject को देखना है. Second subject is plural and verb is singular. So option number B is incorrect again. C, neither the teacher nor the student was. Same, यहाँ पर has है और यहाँ पर was singular है. C option is also incorrect, and neither the teacher nor the students are ready. Option number D is correct. So that was a sentence number 5. Let's move. There is one exam trick. ये बहुत important है.
ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर पता करना होता है, यहाँ पर याद करना होता है, कि यहाँ पर देखना होता है कि आपको बेसिकली कौन सी चीजें दिमाग में रखनी है व्हेन इट कम्स नीदर नॉर एज अ सब्जेक्ट। सबसे पहले इग्नोर द फर्स्ट वर्ब। फॉर एग्जाम्पल नीदर के बाद हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, उसने आपने क्या करना है उसको देखना ही नहीं है, आपका उसके साथ कोई भी लेना देना नहीं। जस्ट लुक एट द सेकंड पॉइंट, जो कि एग्जाम ट्रिक के अंदर आपको बहुत ही काम आ सकती है। or try to just jot down rules and tricks in your copy. Second कह रहा है the verb agrees with the verb nearest to it। जो बहुत ही करीब सब्जेक्ट होगा जो वर्ब के, उसके साथ ही वर्ब एग्री करेगा, द क्लोजेस्ट वन, जो नियरेस्ट वन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने पूरे सेंटेंसेस ऊपर देखे हैं, तो आपने क्या करना है, जो वर्ब एग्री करेगा वो सेकंड सब्जेक्ट के साथ करेगा। सो द थर्ड वन विच इज, जो कि सारा के सारा जो रूल है इसी पर डिपेंड करता है, वॉच फॉर सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। सेकंड जब सब्जेक्ट आप देखेंगे, आपने क्या करना है, ये देखना है कि अगर सिंगुलर है तो आपने सिंगुलर वर्ब लगाना है, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाना। सो यहाँ पर नंबर 4 भी होना चाहिए, कौन सा वाला, पॉजिटिव एडजेक्टिव वाला, जो कि हमने यहाँ पर सेंटेंस डिस्कस किया है। विच वन सेंटेंस, जस्ट लेट मी शो यू दिस वन। ये आपने, ये भी रूल आपको याद रखना है, बिकॉज दिस इज आल्सो द फेवरेट वन, जो कि बहुत सारे टेस्ट में आता है। सो विद दैट, आई होप कि ये जो वीडियो है आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो जस्ट ट्राई टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैड इजी विद सलीम। एंड आई होप JST का अभी सिलेबस जो है, टेस्ट स्पेसिफिकेशन निकल चुका है, so this is series is going to be very important for you. Just keep watching and see you in next video. Thank you.